So yo, what's happening guys, and welcome to another video of Padhai Ka Adda. Today we will learn about our India. So this is part 1. Totally we have 10 parts and we will complete it into 2 or 3 weeks. There are 10 parts. This is the introduction, of mainly the introduction, and in more parts we will learn about like political surrounding, freedom struggle, and many more things like this. So what are this presentation's main points? So this presentation's main point are introduction, surroundings, extreme types of India, divisions of India. So you can see on the map here, I have already marked to save the time. So you can see here that the markings on the red where I'm drawing I will draw everything with color dark blue. Now the where So where I have drawn tick, the red one is North America. The green one where I've made tick is South America. The yellow one where I've made tick now is Europe. The orange one where I've made the tick now is Africa. This is Australia continent. This is New Zealand, or you can also call it Oceania. This is Asia, and this is our India, where what we are studying about. So let's erase all. So you can see the map clearly here. So next we move to its surroundings. I have already marked here. So surroundings, we have two types of surroundings: political surroundings and physical surroundings. In our next video we will learn about political surroundings in very deeply, and in next video we will learn about physical surroundings very deeply. So here that we share boundaries with the red one, Pakistan. Afghanistan is here. Myanmar is where my pointer. Myanmar is here. China you already know. Bhutan is very small, so I'm making some pointers here. And then Nepal you can already see it's bigger, written bigger. Then Bangladesh is also physical. So we also share boundaries with, ये मैंने मार्क नहीं किया बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. वी ऑल्सो शेयर बाउंड्रीज विथ श्रीलंका जो कि यहाँ पर है. एंड देखो कहीं किसी भी इंडिया के मैप में आपको मालदीव्स नहीं दिखाते हैं. इसका रीज़न ये है कि वो एक्चुअली बाउंड्री शेयर नहीं करता है इंडिया के साथ में, पर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है. यस, वो मेन लैंड इंडिया से नहीं करता है, बट अंडमान एंड निकोबार से करता है. दैट्स वाई हम उसको कहते हैं. सो एक्सट्रीम टिप्स ऑफ इंडिया. सो आप लोग सोच रहे होंगे एक्सट्रीम टिप्स ऑफ इंडिया है क्या आखिर. जैसे आपको पता ना साउथ में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी. वैसे ही हर डायरेक्शन में एक ना एक एक्सट्रीम टिप्स है. लाइक सबसे ऊपर जाओ तो कश्मीर है, तो वैसे ही. तो चलिए हम पढ़ते हैं. तो नदर्न मोस्ट टिप इज लद्दाख. द सदर्न मोस्ट टिप इज कन्याकुमारी. तो लद्दाख जो है, जो कि एक अब एक यूनियन टेरिटरी है, पहले स्टेट, पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, वो नदर्न मोस्ट है. यानी पहले तो मैं आपको लिए एक डायग्राम बना देता हूँ रफ सा. एन ईस्ट साउथ वेस्ट. तो इस साइड जो है वो हमारा लद्दाख है, और साउथ वेस्ट में हमारा कन्याकुमारी है. पर कन्याकुमारी खाली मेन लैंड का है, मेन लैंड का है. पर जो हाउएवर द इंदिरा पॉइंट विच इज लोकेटेड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये असली में है, ये असली इंदिरा पॉइंट है. पर जो मेन लैंड का एक्सट्रीम टिप है वो कन्याकुमारी, और जो पूरे कंट्री का है वो है इंदिरा पॉइंट. सो इंदिरा पॉइंट की डेफिनेशन जान लेते हैं. यहाँ पर हम इंदिरा पॉइंट की डेफिनेशन जान लेते हैं. इंदिरा पॉइंट is that point where the last land of India lies in south. यानी मैंने बताया साउथ में जो लास्ट लैंड इंडिया का लाई करता है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं. सो लेट्स हमारे फेवरेट कलर पर आ जाते हैं हम लोग. तो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट इज रन एट कच्छ.
तो आपने सुना तो होगा, ये होता है वेस्ट। तो आपने सुना तो होगा ही, रण ऑफ कच्छ में एक डेजर्ट है जो कि सी से घिरा हुआ है। इट्स अमेजिंगली। एंड इंडिया के बारे में आपको इस पूरी सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट जानने को मिलेंगे एक्चुअली। देखो ये 10 पार्ट्स की तो इन्फॉर्मेशन सीरीज होगी, उसके बाद में हम इसी सीरीज में फैक्ट्स कंटिन्यू करेंगे। अगर बीच में कोई चेंजेस आते हैं तो वो भी डालेंगे। So let's move to the next. Easternmost point is Anjaw. Anjaw is in the state. I'll show you in the map also. So you can see here. Here is the Anjaw. Here. Here is Anjaw. So move back. So this is the extreme tips of India. Let's move to our next topic. That is divisions of India. Let's change the color here. I'll choose purple. So divisions of India, let's talk about it. So there are two types of divisions of India. I've already told you. The political divisions and the physical. तो ये physical and political के बारे में हम अपने videos में आगे भी पढ़ेंगे. So political divisions, which comprises of all the 28 states, division and 8 union territories of India. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 8, 28 एंड 8. सो बहुत लोग तो सोच रहे होंगे यार पहले 29 थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर का डिवीजन हो गया तो 9 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स हो गए, तो ये बंदा 8 क्यों बता रहा है? सो गाइस, गवर्नमेंट ने हाल ही में दमन एंड दीव, जो एक दमन एंड दीव, मतलब ये नॉलेज बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। और ये जो बात है, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है एंड वो खाली अब एक यूनियन टेरिटरी है, वो दो अलग अलग नहीं है, अब वो एक यूनियन टेरिटरी है। या हम जानेंगे इन सब के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आप इस वीडियो पे कंफ्यूज ना हो। तो क्या किया है गवर्नमेंट ने हमारी, उसको एक मर्ज करके एक नाम दे दिया है, वो सुन के आप ये बेहोश हो जाओगे, इसलिए मैं वहाँ लिख देता हूँ। कहाँ से लिखूँ? डिस्प्ले सेटिंग्स, स्क्रीन, वाइट स्क्रीन हम लेंगे। सो उसका पूरा नाम है दादरा एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड ये है उसका पूरा नाम, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट, the physical which comprises of the major landforms of India such as mountains, plains, rivers, etc. तो देखो सर जी, देखो सर, हम फिजिकल के बारे में जानेंगे, उसमें हम माउंटेन डोमेन्स के बारे में, फिजिकल लैंडफॉर्म्स, हाँ हम हिस्ट्री करते करते इंडिया के बारे में जानते जाते, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, मतलब ये पूरी बहुत एसएसटी, ये एक तरीके से आप इसको ईवीएस समझ लो पर थोड़ी हायर लेवल की, लाइक 6th या 5th या 6th की। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काम आएगी, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कुछ ग्रेड्स के लिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। So fun facts, let's talk about fun facts. So did you know first plastic surgery was done in India? बहुत लोगों को फैक्ट पता होगा, पर ये तो फन फैक्ट्स हर वीडियो के बाद में आ रहे हैं ना। जो असली फैक्ट सीरीज होगी इस पूरी सीरीज के बाद में, हाँ मज़ा आ जाएगा, और वो कभी नहीं होने वाली, फैक्ट्स आते रहेंगे, हम बताते रहेंगे आपको। So let's move to the next slide. What's in the next slide? Thank you friends for watching this video. Meet in our next video with some more exciting topics. Till then, bye.
भैया। और एक चीज़ और, ये सीरीज़ बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, इसलिए फॉलो अप करना, इसमें बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू।